व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ CA Nalini Gupta and I am back with a special video. Why I am saying it's special? Because today I am not alone here. I have someone to discuss something really important for CA students. Additionally, there is something very special, or you can say a secret, for CA Final May 26 aspirants. So वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, CA जर्नी में सिलेबस बड़ा है, कंपटीशन टफ है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में रियल डिफरेंस मार्क्स का नहीं, सिस्टम का होता है। रैंक कोई इमोशनल स्टोरी का एंड रिजल्ट नहीं है। रैंक इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लीन स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन एंड द राइट माइंडसेट। मोस्ट स्टूडेंट्स प्लान अ लॉट, वेरी फ्यू फॉलो द प्लान. Most students study hard, very few study right, and that's where the game changes. And आज हम उसी गेम को डिकोड करेंगे. स्ट्रेटेजी, माइंडसेट, एग्जीक्यूशन, राइटिंग प्रैक्टिस, पेपर्स, एग्जाम टेम्परामेंट, सब प्रैक्टिकल, नथिंग फैंसी, बिकॉज द गोल इज सिंपल. अटेम्प्ट नहीं, आउटकम चेंज करना है. स्टडी आवर्स नहीं, रिजल्ट्स मेजर करने हैं. And to take this conversation on the next level, today we have someone who has proved with his execution, CA Yash Agrawal, AIR 39 in May 25 attempt. He has done his articleship from KPMG and still secured an all India rank. So what were his strategies, how he executed his plans? Let's understand the same from him. Welcome, Yash. So we are so happy to have you here with us. So firstly, we all want to know कि जब आपने अपने एग्जाम्स दिए थे तब आपने एक्सपेक्ट किया था that you will achieve a rank and that to AIR 39. Thank you, Nandini, for having me here. So, means after exams, ये तो sure था I will pass, but rank का expectation नहीं था, because rank always depends on the people around you, how they perform, right? So rank का expectation of course नहीं था, but of course ये तो पता था कि pass हो जाऊंगा. Okay, great. Yash, as you have done your articleship from Big Four KPMG, there's a common myth in the minds of CA students कि अगर हम जब हमने आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे और अगर हमने बिग फोर ज्वाइन कर लिया तो हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा. वी हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स. हमें जो प्रिपरेशन टाइम है वो भी 3 महीने का, आई गेस 3 या 3.5 महीने का ही मिलेगा. सो इससे बढ़िया हम एक मिड साइज फर्म ज्वाइन कर लेते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें बिग फोर ज्वाइन करना है, इंडस्ट्री ज्वाइन करना है. लेकिन अभी तो हम आर्टिकलशिप आराम से करते हैं. क्या ये एक मिथ है, वो गलत है सीए स्टूडेंट्स के माइंड्स में? बिकॉज यू हैव स्पेंड योर 3 years इन बिग फोर and still you achieve a rank. So what is your view upon it? So I think means it's a must. Depends on totally the person उसका उसको क्या करना है. But I would suggest कि एक experience of Big Four लेना चाहिए. It's very good experience. So it's totally depend on who you means. If you are in a small firm, still it's on you whether you study after coming to office or not. और मतलब time तो मिलता है. It's on you how you utilize. So ऐसा कुछ नहीं है कि in Big Four you get less leave. In Big Four you have to work long hours. बट वो सब नॉर्मल फॉर्म में भी होता है एंड बिग फोर में भी होता है. इट टोटली डिपेंड आफ्टर दैट यू स्टडी और व्हाट यू डू. सो आई थिंक व्हाट फॉर्म यू चूज डज नॉट डिपेंड ऑन योर रिजल्ट्स. सो टाइम तो इक्वली दोनों में मिलता है, बट इट इज दैट हाउ यू सी एट इट. Okay, great. So what was your daily routine and how you managed your time with your articleship and managing your studies as well? What was your planner for the whole day during the articleship? I During articleship I do not used to prepare a day wise planner, but I used to prepare a week wise planner because पता नहीं होता है कि today I will work for this many hours और कितना करेंगे. So तो पूरे वीक का आई यूज्ड टू प्रिपेयर कि इन वीक क्या क्या मुझे खत्म करना है एंड अकॉर्डिंगली आई यूज्ड टू प्लान. फॉर एग्जांपल इन वीक डेज आई डिड नॉट गॉट मेनी मच टाइम, तो वीकेंड्स पे वो कवर हो जाता था. बट ऑन द अदर हैंड इफ वीकडेज पे ही वो पूरा चीजें हो गई तो वीकेंड पे दूसरी चीजें कर सकते हैं. इवन यू कैन स्पेंड वीकेंड विद ऑन योरसेल्फ आल्सो दैट. So I used to prepare a weekly plan instead of a daily plan. In weekly plan, I used to what you do means I used to select one subject, like I have to do 4-5 lectures of that subject, और क्या सेल्फ स्टडी करना है, कितना थोड़ा बहुत ऑडिट पढ़ना है, वो सब मैं पूरे वीकली प्लान कर देता हूँ. सो बेस्ट थिंग आई थिंक लोगों को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को करना चाहिए कि दे यूज टू सी हाउ मच टाइम दे हैव and how much they have to study. So accordingly they can allocate and they will get an idea ki how much things they have to do in a week. Okay. So I think this way should be seen. Okay.
सो जनरली आफ्टर वर्किंग फॉर 8 to 10 hours इन अ डे, शाम तक आते आते बच्चे थोड़ा बर्नआउट फील करते हैं कि अब नहीं हो रही है पढ़ाई। क्या वो आपके साथ भी सेम था? हाँ, नेचुरल है। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू मींस इफ यू आर फीलिंग बर्न आउट देन कम होम एंड डायरेक्टली स्लीप एंड स्टडी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। Means हम्म। instead of pushing yourself on that day, what you can do, you can sleep that time and wake up early in the morning next day. Or another idea could be you can focus on the subjects which you like. So usme you will not feel burnout and all even after doing work. So ऐसे कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में ही करके जा सकते हैं, ऑफिस लेट तक करें कि इतना टाइम हो जाए कि घर पे आके सोने का ही टाइम हो जाए, राइट। ओके। यश, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस, मतलब आपकी ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप क्लासेस खत्म हो गई थी या आपका ड्यूरिंग द स्टडी लीव पीरियड भी आप क्लासेस कर रहे थे? नहीं, हो गई थी, मतलब इट वाज बहुत अच्छे से हो गई थी। हम्म। स्टडी लीव के तो पहले मेरे सारे क्लासेस हो गए थे, मतलब बहुत टाइम भी बीच बीच में ले लेके आराम से हो गई थी बिकॉज इट वाज अ 2.5 years, तो हम्म। उसमें 5 सब्जेक्ट्स तो आराम से हो गए थे। सो क्या आप भी यही सजेस्ट करेंगे टू स्टूडेंट्स की एटलीस्ट जो हमारी क्लासेस होती हैं फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, वो बिफोर दिस गोइंग ऑन टू द स्टडी लीव पीरियड खत्म हो जानी चाहिए? एंड Yes, व्हाई इट इज वो तो हो ही इम्पोर्टेंट? जानी चाहिए। I will tell you, you should do one more thing. You should do one self study also during that time. Because if you do one self study, you will understand कि whether you are understanding those topics or not, क्या doubts है वो ही टाइम पे clear हो जाएंगे। So that study leave में ऐसा नहीं हो कि यार हमको कुछ आ ही नहीं रहा है, ये doubt है, ये है, वहाँ पर बहुत time waste होता है। So you should हम्म। plan for study leave कि when I will go in study leave मेरा एक मिनट भी waste ना हो। All the हम्म। resources पूरे, अगर फर्स्ट टाइम इफ यू विल स्टडी यू विल गेट टू नो कि हमको कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, हमें क्या डाउट्स है, कौन से सर्च के हमको फॉलो करने हैं। तो आई थिंक इवन students should complete the lecture plus one time study should also be done during the articleship year. ग्रेट यश। ड्यूरिंग योर स्टडी लीव पीरियड व्हाट वाज योर 24 hours planner, means for a one day planner, how you managed your things? So again, in study leave also, I used to prepare a very short planner. For example, a 2 day or a 3 day. What all things I have to cover on 3 days. For example, if I have selected FR as a subject and I have told that I have to complete module one, which have 4 5 chapters in 3 days. So then I will bifurcate among the 3 days ki कौन से topic कौन से करने हैं. For example, if I've taken a big topic, then I will keep a light topic in the evening. So even my hourly wise, I do not used to plan, but a short plan for a 2 day, for a 3 day, or I used to ensure कि वो 3 days में हो जाए. And even I always tell people कि if you are not able to achieve your target, it's okay, but you ensure that you are not wasting your time. Means you have used that time effectively throughout the 3 days. It's okay if you have taken 4 days to complete that plan, because if you are using the time, it means you have not estimated earlier rightly कि इतना टाइम लग जाएगा. So it's okay. It should not be worrying us. ओके, ग्रेट। यश, जनरली स्टूडेंट्स फील, एंड शायद आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी, कि आफ्टर डूइंग फर्स्ट रिवीजन बच्चों को ये लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है इन एनी सब्जेक्ट, ऑल 5 सब्जेक्ट्स कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लग रहा है बस पढ़ के निकल गया दिमाग से। इज दिस अ कॉमन फिनोमेना या फिर इसे किसी तरह रिजॉल्व आउट किया जा सकता है? ये सबके साथ इवन मेरे साथ भी हुआ था. सो व्हाट हैपेंड, मैंने जब वन टाइम पूरा पढ़ लिया था, देन आई आस्क्ड माय स्टूडेंट, माय फ्रेंड की अरे अभी तो याद ही नहीं आ रहा है कुछ पढ़ा था तो ही टोल्ड मी 3 4 बार पढ़ेगा तो याद आ जाएगा, हो जाएगा. सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड से दैट कि 3 4 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा. दैट विल गिव यू द मोटिवेशन टू डू अ 3 4 रिविजन इंस्टेड ऑफ डाउटिंग कि यार ये याद होगा भी कि नहीं. बिकॉज इफ यू विल स्टैंड एट रिविजन 2 एंड से कि अरे याद होगा नहीं होगा कैसे होगा, जस्ट से दैट 3 4 करेंगे तो हो जाएगा. एंड बाय द टाइम यू विल रीच 3 4 रिविजन वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है. सो एनीथिंग मीन्स बार बार करते हैं तो इट रिमेम्बर्स, राइट. सो एट रिवीजन 2 यू शुड जस्ट गिव योर कॉन्फिडेंस दैट हमको 4 बार करना है, फिर याद हो ही जाएगा. ओके, ग्रेट। ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू यू, at least how many revisions a student should do before going to the exams? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स कैलिबर. मतलब आई हैव सीन पीपल जो 2 रिवीजन करके भी दे डू वेरी वेल.
एंड कोई कोई 4-5 रिविजन करके भी नहीं कर पाते बिकॉज उनका कितना ग्रास्पिंग पावर होता है बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो बट इन आइडल सिनेरियो 3-4 रिविजन एनीबडी शुड डू इट एंड जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं दे शुड आल्सो आइडेंटिफाई कि ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स है तो उसको मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा एंड इट इज़ ऑल्सो कि स्टार्टिंग में हमको बहुत टाइम लगता है बट बाय द टाइम यू रीच अ थर्ड और फोर रिविजन यू कंप्लीट इट विद इन 3 day 4 day so it's always good to do more number of revisions of the subjects you are in week. सो यश, अगर मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज बात करूं, अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से शुरुआत करूं, एफआर एंड एएफएम, सो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी फॉर बोथ ऑफ दीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ ऑफ देम? So I think इस सब्जेक्ट्स में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए सो आई यूज टू रीड द कॉन्सेप्ट पूरा फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एनी चैप्टर सो उसके पूरे कॉन्सेप्ट आई यूज टू रीड थ्रू कि मेरे को सब समझ में आ रहा है एंड ऑल द क्वेश्चंस जो भी रहते हैं मॉड्यूल के या फिर जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के क्वेश्चन बैंक होते हैं दैट आई यूज टू सॉल्व खुद 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 सॉल्व करता था रफ रफ वर्क में एंड देन फिर एक मॉक टेस्ट भी दे दिया था पूरा so I think this is more than enough. Firstly, you can read the पूरा concept and then solve all the questions and just mark down भी कर सकते हैं कि कौन से अच्छे क्वेश्चंस हमको नहीं आ रहे नेक्स्ट रिवीजन में उस पर ज़्यादा ध्यान देना है एंड वन मोर थिंग विच डिफरेंटली मैंने फॉलो किया था कि कभी भी कुछ भी मिस्टेक होती थी तो आई यूज टू नोट डाउन दैट इन सेपरेट नोटबुक and used to read before starting my next revision so that I do not repeat that mistake again because I used to think कि अगर मैंने सारे mistake जो मैंने पूरे study phase में किए हैं that if I read on a 1.5 day देन मेरे कोई भी मिस्टेक मैं रिपीट करूंगा ही नहीं बिकॉज जो मिस्टेक्स हुए वो मैंने नोट डाउन कर लिए वो भी मैंने रीड कर लिए सो आई वुड बी 100% प्रिपेयर्ड आई थिंक दिस थिंग पीपल कैन फॉलो ऑन दिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपने एफआर एंड एएफएम में एलडीआर क्वेश्चंस रखते हैं 1.5 डे रिवीजन में। सो क्या ये मतलब एक सही स्ट्रैटेजी है कि हम कुछ क्वेश्चंस को लास्ट डे तक अपने पास रख रहे हैं फॉर सॉल्विंग देम, या फिर हमें सिर्फ यस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए? so in FR what I did so I have a 5 days everybody has 5 days तो मैंने FR में तो सारे क्वेश्चंस कर लिए थे नॉट हम्म। स्पेसिफिकली LDR बट AFM में LDR करके मार्क कर लिए थे बिकॉज वहां पर टाइम कंस्ट्रेंट रहता है दो माय फर्स्ट फोकस ऑन 1.5 days on is to understand the concept so मैंने हाफ डे और 7.5 डे तो पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ने में लगा दिया था बाकी जितना भी टाइम बचा था जो भी क्वेश्चन मैंने LDR मार्क करके रखे थे वो कर लिया था ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं थ्योरी की बात करूं ऑडिट सब्जेक्ट की, सो ऑडिट में सबसे बड़ा एक जो चैलेंज स्टूडेंट्स को आता है कि ऑडिट याद नहीं रहती। कितनी बार भी पढ़ लो कीवर्ड्स याद नहीं रहते, लाइंस याद नहीं रहती, कौन से टॉपिक का क्या आंसर होगा वो ध्यान ही नहीं रहता। सो उसे आपने कैसे ओवरकम किया था? तो ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था जो व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टडी लीव आई स्टार्टेड विद प्रोफेशनल एथिक्स तो मैंने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो अगेन मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था देन आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि भाई इतना पढ़ तो ले याद रहने वाला है तो ही टोल्ड मी कि 3-4 टाइम्स पढ़ना है पढ़ लेंगे तो याद रह जाएगा मैंने हमेशा मैं पढ़ते टाइम यही सोचा था 3-4 टाइम्स पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा सो आवर टारगेट शुड बी कि 3-4 टाइम्स पढ़ लेना चाहिए so again on strategy every day I used to read मतलब learn करता था audit को and what I used to do I used to once एक subject हो जाता था तो 2 दिन में फिर audit को दे देता था उसमें 2 चैप्टर में खत्म कर देता तो by the time मेरा सारे 4 सब्जेक्ट खत्म हुए थे तो 8-10 चैप्टर कंफर्टेबली मेरे audit के भी हो गए थे then remaining 7-8 चैप्टर ही मेरे बचे थे सो दैट वाज मैनेजेबल जो मैंने डेज अलोकेट कर दिए एक साथ में 19 चैप्टर्स पूरे आ जाते तो बहुत प्रेशर आ जाता है इतना थियरी कैसे होगा सो आई यूज टू डू कि रोज 2 आवर्स करो और प्लस एक बार पूरा सब्जेक्ट हो जाए तो फिर 2 दिन ऑडिट को एलोकेट कर दो बिकॉज 2 days तो एक बार आप बेयर कर सकते हो ऑडिट को इंस्टेड ऑफ डूइंग अ मंथ और 15 day एट अ स्ट्रेच सो यश, जनरली ऑडिट में बच्चों को एक और ही मिथ रहता है कि यार ये तो एक सिर्फ थ्योरी है, अगर हम थ्योरी को बार बार पढ़ लेंगे लर्न कर लेंगे तो काम हो जाएगा। सो क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ना, उसे बार बार रिवाइज करना ही काफी है, या फिर उसमें हमें पेपर्स या कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है इन दी थ्योरी सब्जेक्ट एज वेल? तो आई थिंक इसमें राइटिंग प्रैक्टिस इतना नेसेसरी नहीं है जस्ट दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन सॉल्विंग बट एज अ राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन गिव द मॉक टेस्ट बिकॉज वो एक साथ सारे चैप्टर्स याद आ रहे कि नहीं आ रहे वो उससे पता चल जाता है बट यू इफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आफ्टर एवरी चैप्टर वन चैप्टर इज डन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन बैंक जो आरटीपी होते हैं
मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट दैट कि आ रहे कि नहीं वो क्वेश्चंस, नॉट नेसेसरी हाथ से सॉल्व करना, बट एक मॉक टेस्ट यू कैन गिव. Okay. What was your strategy for audit in the 1.5 day? सो एक्चुअली मैंने बहुत सारे रिवीजन कर लिए थे ऑडिट के. सो अगेन जो मैंने ओवरऑल स्टडी लीव में किया था वही मैंने 1.5 डेज में किया था. इट इज जस्ट दैट कि मेरा वो 1.5 डे पे हो गया था, बिकॉज मैंने हम्म. इतनी बार कर लिया था कि वो बहुत प्रोसेस फास्ट होते जा रहा था. सो अगेन जो जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़े हुए हैं वही वापस पढ़ो, बिकॉज इफ 4-5 बार पढ़ लिए होते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू रिकॉल. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू क्लोज द बुक एंड जस्ट रिकॉल द आंसर्स. अगर नहीं आया तो देख लेता था. तो वैसे मैंने पूरे मेरे जो भी चैप्टर्स थे उसको मैंने माइंड में खुद रिकॉल कर लिए थे, और जो नहीं आ रहे थे वो मैंने देख लिए थे, रीड कर लिए थे, जैसे नेक्स्ट डे मेरे को कोई इशू ना हो. Okay, great. तो Mo- क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे. इफ यू वांट टू आस्क कि क्वेश्चन बैंक यू हैव टू डन ऑन 1.5 डे, तो वो तो मैंने नहीं किए थे, बिकॉज मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, तो फिर क्वेश्चन बैंक की मतलब जरूरत नहीं लगी मुझे. Great. Moving forward on the semi-practical, semi-theory subjects like DT, IDT, जो कि प्योरली हमारे लॉ बेस्ड है, उनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, उनमें लॉ वर्क करता है. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग योर स्टडी लीव पीरियड एंड फॉर एज वेल 1.5 डे? अगेन सेम इसमें भी जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हियर यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट. यहाँ पर लर्न नहीं करना होता है, रीड करो एंड समझ जाना चाहिए, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व कर लो वही वाले कॉन्सेप्ट. एंड 1.5 डे पे तो आई हैव ओनली रेड द कॉन्सेप्ट, सॉल्व नहीं किए थे क्वेश्चंस, बिकॉज वहाँ पर टाइम कंसिडर हो जाता है. तो पूरे खाली कॉन्सेप्ट्स को रीड कर लिए थे एक बार बस. और सेम इसमें भी अगर कुछ मिस्टेक होती है तो यू कैन राइट ऑन अ मिस्टेक बुक, बिकॉज वो उससे पता चल जाता है कि ओवरऑल कितने मिस्टेक्स किया, एग्जाम में वो रिपीट नहीं कर. राइट. अगर मैं डीटी आईडीटी की बात करूँ तो उसमें अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जनरली अगर हम सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं तो उसमें रेलेवेंट लॉ पोर्शन भी लिखा हुआ होता है. फर्स्टली माय क्वेश्चन इज कि क्या हमें भी अपने पेपर में वो लॉ पोर्शन लिखना जरूरी होता है? क्या वो हमारे मार्क्स को कहीं इम्पैक्ट करता है? एंड यस, अगर वो इम्पैक्ट करता है तो क्या वो हमारी एज पर लीगल लैंग्वेज जो है उससे मैच होना चाहिए या हम खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं? तो इसमें डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, मीन कैसा क्वेश्चन आ रहा है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 में तो यू हैव टू राइट इन नोट्स एवरीथिंग जो भी एडजस्टमेंट करते हैं, एंड इवन इफ यू आर राइटिंग तो अपने लैंग्वेजेस में लिखना होता है. खाली कॉन्सेप्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, एंड कीवर्ड जो होते हैं लॉ के, दैट यू हैव टू यूज. तो मतलब इट इज बेटर टू राइट लॉ का हर एक कंसेप्ट जो भी वो क्वेश्चन के रिलेटेड है इन ओन वर्ड्स. इट्स ओके, एज इट इज सेम लिखना इज नॉट नेसेसरी. ओके. मूविंग फॉरवर्ड टू आईबीएस, जो सभी सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर है जिसमें कॉस्टिंग और लॉ भी आता है, जो बच्चे सिर्फ एसपीओएम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ के कैसे भी करके उसे मैनेज कर लेते हैं. सो हाउ यू मैनेज आईबीएस? बिकॉज 5 सब्जेक्ट्स को तो हम शिद्दत से दिन रात पढ़ते हैं तो वो तो अच्छे से हम कर लेते हैं, लेकिन कॉस्टिंग और लॉ में हमारा हाल बुरा ही रहता है. सो आपने ओवरऑल आईबीएस के लिए कैसे तैयारी करी थी? टू बी ऑनेस्ट मैंने ट्राई किया था कॉस्टिंग एंड लॉ करने का, बट कर नहीं पा रहा था, तो मैंने उनको छोड़ ही दिया था. सो व्हाट आई डिड, आई सॉल्व वन मॉक टेस्ट फॉर आईबीएस सब्जेक्ट. उसमें मुझे पता चल गया कि व्हाट शुड बी द अप्रोच. आई थिंक उसमें अप्रोच ये होता है कि जो क्वेश्चन तुमको आ रहे हैं यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट, और जो नहीं आ रहे उनको लीव कर देना चाहिए, बाद में मिलेंगे तो ढूंढ के लिख लेने का. तो दिस हम्म. अप्रोच आई लर्न व्हेन आई गिव द मॉक टेस्ट. और जो कॉस्टिंग्स एंड लॉ के है, मैं ऐसा चल रहा था कि अगर मैंने पूरा पढ़ भी लिया तो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द आंसर इन द एग्जाम. तो मैं सोचा इट्स बेटर कि मैं नहीं करूं, एंड एग्जाम में मिल गया तो लिख लूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा. दिस आई हैव फॉलोड, बट स्टूडेंट्स कैन मीन्स रिविजन वीडियोस एंड ऑल देख सकते, दोज आर हेल्पफुल, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था तो मैंने वो तो नहीं किया. सो हाउ यू स्पेंट योर 1.5 डे फॉर आईबीएस? एक्चुअली उसमें मैंने जो पास्ट के 2-3 एग्जाम के क्वेश्चंस हुए थे, पेपर्स हुए थे, वही मैं सॉल्व कर रहा था. आई वाज जस्ट सीइंग कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहे कि नहीं, बिकॉज वही बेसिस पे नए हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे. तो इफ नहीं आ रहे तो इफ आई एम एबल टू फाइंड दैट आंसर और नॉट, तो मैंने तो पेपर सॉल्विंग में ही वो 1.5 डेज स्पेंड किया. Okay. So thank you so much, Yash.
आपने बहुत सारे अपनी स्ट्रैटेजीज एंड इंसाइट्स बताया एंड आई रियली होप दिस विल गोइंग टू रियली 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 हेल्प ऑल द सीए फाइनल स्टूडेंट्स और सीए इंटर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग देयर प्लानर्स और स्ट्रैटेजीज फॉर देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। गाइस, जैसे मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में बात किया था कि दैट देयर इज समथिंग रियली वेरी स्पेशल फॉर May 26 एस्पिरेंट्स, सो हियर आई एम विद अ mentorship program for CA final May 26 students. After a successful response of Jan 26, me and Yash are launching the mentorship for May 26 as well. So इसमें क्या आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा? आई विल हैंड ओवर टू यश टू एक्सप्लेन यू ऑल। सो गाइज हम लोग इसमें आपको एक फर्स्ट तो पर्सनलाइज प्लानर देंगे. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ स्टडी लीव पीरियड ऑफ 5 years, so how you should plan your each day, week, months. So it will be totally customized based on your strength. Means if you are have a ability to study for 8 hours or 10 hours, based on that we will give you how much revision you have to do throughout the year, throughout the period, how much mock test you have to do, and if you have any planned leaves on that day, how you can plan for that also. फिर वो जो हमने ट्रैकर बनाया होगा वो दैट वी विल ट्रैक ऑन वीकली बेसिस, whether you are going as per the track or not, whether there any modifications are required on the tracker. जो भी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे एंड वीकली कॉल, दिस विल बी 1-to-1 कॉल्स वेयर हम लोग आप लोग के साथ करेंगे. दिस वोंट बी अ ग्रुप कॉल. सो जो भी इश्यूज होंगे यू कैन डिस्कस ऑन दोज कॉल. एंड बहुत टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स फील लोनली ड्यूरिंग द एंटायर स्टडी लीव पीरियड. मीन्स कोई भी इश्यूज आते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओवरऑल क्या अप्रोच होना चाहिए. सो वी विल प्रोवाइड हैंड होल्डिंग throughout the study leave. If you have any issue, you are not feeling well, if you are not going as per the track, you can contact us, you can message us, you can call us. We will be providing you guidance throughout this 5 months or your study leave period. So remaining points, I think Nandini would take over. यस, वी आर गोइंग टू बी योर एग्जाम्स के साथी। हम आपके एग्जाम्स तक इस तरह से चिपके रहेंगे कि आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। एंड एडिशनली वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड दी 4 मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो इन दिस प्रोग्राम ओनली, यानी कि आप 4 into 6 सब्जेक्ट्स टोटल 24 टेस्ट देने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि मैं एंड यश मिलकर आपके इवेलुएट करेंगे। आपके जो भी फीडबैक्स होंगे वो हम आपके टेस्ट पेपर्स में भी आपको लिख करके देंगे, आपके साथ 1-to-1 कॉल्स में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको एग्जाम रेडी बनाएंगे हम साथ में मिल करके, राइट। एंड दिस प्रोग्राम इज जस्ट फॉर ₹5,000। अर्ली बर्ड ऑफर इज देयर टिल 31 अक्टूबर। प्लीज प्लीज अभी एनरोल कर लीजिए। माय नंबर इज ऑन द स्क्रीन। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर 31 अक्टूबर दिस इज गोइंग टू बी फॉर 6,000 गाइस। जस्ट ट्रस्ट मी, दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अ चाबी फॉर यू, जो कि आपके मंजिल तक आपको पहुंचा सकती है। सो डोंट वेट, एनरोल नाउ। एंड दिस इज गोइंग टू बी जस्ट वेरी वंडरफुल थिंग फॉर यू, मी एंड यश, की हम सब साथ मिलके धमाल मचा देंगे। एंड यस, देयर इज अ सेपरेट ग्रुप ऑल्सो, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें सारे May 26 के एस्पिरेंट्स साथ में जुड़े हुए होंगे। तो आप लोग आपस में भी बात कर सकते हो, मुझसे, यश से भी बात कर सकते हो। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे, यश को तो कॉल कर सकते हो। आप लोग आपस में भी बातचीत कर सकते हो, जो कि सिर्फ आप लोग के लिए डेडिकेटेड ग्रुप होगा। सो मुझे आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में यही डिस्कस करना था। एंड यस, एनरोल नाउ। माय नंबर इज ऑन द स्क्रीन। आप मुझे अभी व्हाट्सएप या कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। सो वेटिंग फॉर यू गाइज। साथ में मिलते हैं एंड May 26 को पार लगाते हैं। सो मुझे इस वीडियो में यही बात करनी थी। जल्दी मिलूंगी आप लोगों के साथ विद सम न्यू वीडियोस। टिल देन स्टे ट्यून। हे, दिस इज सी ए नंदनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।